नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने 32 डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इस इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करेंगे। लेसन नंबर 8, रिफाइन योर रीजन, एक्सेप्ट फ्रॉम सोल लेसन्स एंड सोल पर्पज। Channel material, develop your faculty of reason, your capacity to think logically and be objective. Look at life beyond your emotional and subjective filters to see what is true in front of you now. Use properly. The intellect is a powerful tool of awareness that supports your soul's evolution. It is the channel through which you view the world and interpret it. Nothing supports your consciousness, intuitive, and spiritual development more truly than a sharp analytical rational mind, one that observes carefully, records accurately, and distills information properly. Reason becomes blocked when you react emotionally to a situation detached from your feelings and study the facts before you respond. Armed with sounds and accurate information, you can change any circumstance and send it in a new direction. To develop sound objective thinking skills, carefully observe your world without bias. Sound reason can only be cultivated with an open mind. Often, when others, your higher self or your guides offers you an idea or a solution to a problem, you cast it aside without reasonable consideration because it is unfamiliar or different. A closed mind is death to your creative power. The ego can become so rigid and fixed in its perception that it unreasonably filters out the truth of the current situation and emerging information. Your higher self directs you, but if you cloud the channel with emotionally charged inaccuracies, poor perception, and biased notions, you will not be able to assess it. Observe and acknowledge everything, including your feelings, but do not let them overwhelm you. You have blind spots, place where you are unable to see the bigger picture as a result of your upbringing, social conditioning, and even past lives. It is your soul's lesson to remove these barriers to reason. Poorly developed reason is often a consequence of inadequate sight, not just eyesight, but also insight and observation. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Lesson number 8, refine your reason, accept from soul lessons and soul purpose channel material. Develop your faculty of reason, your capacity to think logically, be objective, look at life beyond your emotional and subjective filters to see what is true in front of you now. Use properly. The intellect is a powerful tool of awareness that supports your soul's evolution. It is the channel through which you view the world and interpret it. Nothing supports your consciousness, intuitive, and spiritual development more truly than a sharp, analytical, rational mind, ones that observe carefully, records accurately, and distills information properly. Reason become blocked when you react emotionally to a situation detached from your feelings and study the facts before you respond. Armed with sounds and accurate information, you can change any circumstance, send it in a new direction. To develop sound, objective thinking skills, carefully observe your world without bias. Sound reason can only be cultivated with an open mind. Often, when others, your higher self, or your guides offer you an idea or a solution to a problem, you cast it aside without reasonable consideration because it is unfamiliar or different. A closed mind is a death to your creative power. The ego can become so rigid and fixed in its perception, but it reasonably filters out the truth
of the current situation and emerging information. Your higher self directs you, but if you cloud the channel with emotionally charged inaccuracies, poor perception, and biased notions, you will not be able to assess it. Observe and acknowledge everything, including your feelings, but do not let them overwhelm you. You have blind spots, place where you are unable to see the bigger picture as a result of your upbringing, social conditioning, and even past lives. It is your sole lesson to remove these barriers to vision. Poorly developed vision is often a consequence of inadequate sight, not just eyesight, but also insight एंड ऑब्जर्वेशन। आइए दोस्तों इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पाठ संख्या 8, अपने तर्क को परिष्कृत यानी सुधार करें। आत्मा पाठ और आत्मा उपदेश से अंश लिए गए हैं। चैनल समग्री। अपनी तर्क शक्ति तार्किक रूप से सोचने और वस्तुनिष्ठ यानी ध्येय होने की क्षमता विकसित करें। अपने भावनात्मक और व्यक्तिपरक यानी आत्मनिष्ठ फिल्टर से परे जीवन को देखें और देखें कि अब आपके सामने क्या सच है। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर बुद्धि जागरूक का एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी आत्मा के विकास को समर्थन करती है। यह वह चैनल है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। एक तेज विश्लेषणात्मक तर्क संगत दिमाग की तुलना में कुछ भी आपके चेतना सहज ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का अधिक समर्थन नहीं करता है। जो ध्यान से देखता है, सटीक रूप से रिकॉर्ड करता है और जानकारी को ठीक से प्रसारित करता है। जब आप किसी स्थिति पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो कारण अवरुद्ध हो जाता है। अपनी भावनाओं से अलग हो जाएं और प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों का अध्ययन करें। सटीक जानकारी से लैस आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। ठोस ध्येय यानी वस्तुनिष्ठ सोच कौशल विकसित करने के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह को अपनी दुनिया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। ठोस तर्क केवल खुले दिमाग से ही विकसित किया जा सकता है। अक्सर जब अन्य लोग आपका उच्च सब या आपके मार्गदर्शक आपको किसी समस्या का विचार या समाधान प्रदान करते हैं तो आप इसे उचित विचार किए बिना एक तरफ रख लेते हैं क्योंकि यह अपरिचित या अलग है। एक बल दिमाग आपकी रचनात्मक शक्ति के लिए मृत्यु है। अहंकार अपनी धारणाओं में इतना कठोर और स्थिर हो सकता है कि यह वर्तमान स्थिति और उभरती जानकारी की सच्चाई की अनुचित रूप से फिल्टर कर लेता है यानी छान लेता है, सुधार कर लेता है। आपका उच्च स्व आपको निर्देशित करता है, लेकिन यदि आप चैनल को भावनात्मक रूप से आरोपित अशुद्धियों, खराब धारणाओं और पक्षपाती धारणाओं से भर देते हैं तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी भावनाओं समेत हर चीज का निरीक्षण करें और स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने आप पर हावी होने ना दें। आपके पास अंधे धब्बे हैं, ऐसे स्थान जहां आप अपनी परवरिश, सामाजिक कंडीशनिंग और यहां तक कि पिछले जन्मों के परिणाम से बड़ी तस्वीर देखने में असमर्थ हैं। तर्क की इन बाधाओं को पूरा करना आपकी आत्मा की सीख है। खराब विकसित कारण अक्सर अपर्याप्त दृष्टि का परिणाम होता है, न केवल दृष्टि बल्कि अंतर्दृष्टि और अवलोकन भी। आइए दोस्तों इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। पाठ संख्या 8वां, अपने तर्क को परिष्कृत करें यानी सुधार करें। ये आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री, अपनी तर्क शक्ति तार्किक रूप से सोचने और ध्येय की क्षमता को विकसित करें। यहाँ बता रहे हैं अपने भावनात्मक और आत्मनिष्ठ से परे जीवन को देखें और देखें कि आपके सामने क्या सच है। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर बुद्धि जागरूकता का एक शक्तिशाली उपकरण है। बुद्धि जो है जागरूकता का एक शक्तिशाली उपकरण है, उसके बारे में बता रहे हैं जो आपकी आत्मा
के विकास को समर्थन करती है। यह वो चैनल जिनके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। एक तेज विश्लेषणात्मक तर्क संगत दिमाग की तुलना में कुछ भी आपके चेतना सह ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का अधिक समर्थन नहीं करता है। जो ध्यान से देखता है, सटीक रूप से रिकॉर्ड करता है और जानकारी को ठीक से प्रसारित करता है। जब आप किसी स्थिति पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो कारण अवरुद्ध हो जाता है। अपनी भावनाओं से अलग हो जाएं और प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों का अध्ययन करें। मैंने भावनाओं को अपने अलग करने, तथ्यों किसी चीज को पहले प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों का अध्ययन जरूर करें। सटीक जानकारी से लैस आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जब तक आपके पास ठोस जानकारी नहीं है तब उस स्थिति को परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते। अगर आपके पास सटीक जानकारी है तो उस स्थिति परिस्थिति को बदलने की आपके अंदर क्षमता है, ये बता रहे हैं। ठोस ध्येय यानी वस्तुनिष्ठ सोच कौशल विकसित करने के लिए बिना किसी प्रक्रिया को अपनी दुनिया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। किसी चीज का ध्येय हो, उसकी सोच, उसकी कौशल विकसित करने के लिए बिना किसी प्रक्रिया के अपनी दुनिया को ध्यानपूर्वक से निरीक्षण करना चाहिए। ठोस तर्क केवल खुले दिमाग से ही विकसित होता है। ठोस तर्क जो है, हमारा दिमाग खुला होगा, खुले दिमाग से किसी चीज को हम अच्छी तरह से सोचेंगे, उसको हम तभी प्रतिक्रिया ठोस दे सकेंगे। अक्सर जब अन्य लोग आपका उच्च स्व या आपके मार्गदर्शक आपको किसी भी समस्या का समाधान या विचार प्रदान करते हैं तो हम उसे विचार किए बिना उसे अलग कर देते हैं, उसे सुनते समझते नहीं है क्योंकि वो अपरिचित या अलग लगता है। एक बंद दिमाग आपकी रचनात्मक शक्ति के लिए मृत्यु है। जो एक बंद दिमाग जो है, जो हमारी रचनात्मकता के लिए वो मृत्यु के समान है, बता रहे हैं। अहंकार अपनी धारणाओं में इतना कठोर और स्थिर हो सकता है कि यह वर्तमान स्थिति और उभरती जानकारी की सच्चाई को अनुचित रूप से फिल्टर कर देता है। माने उससे फिल्टर कर देता है, इस उभरती जानकारी की सच्चाई को अनुचित रूप से फिल्टर कर देता है। आपका उच्च स्व आपको निर्देशित करता है, लेकिन यदि आप चैनल को भावनात्मक रूप से आरोपित अशुद्धियों, खराब धारणाओं और पक्षपाती धारणाओं से भर देते हैं तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर बता रहे हैं अपनी भावनाओं से सहित हर चीज का निरीक्षण करें। अपनी भावनाओं और जो भी चीज है, हर चीज का अब अच्छी तरह से निरीक्षण करें और उसे स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। आपके पास अंधे धब्बे हैं, उन्हें कई धब्बे के बारे में बता रहे हैं। ऐसा स्थान है जहां आप अपनी परवरिश, सामाजिक कंडीशनिंग और यहाँ के पिछले जन्मों के परिणाम स्वरूप बड़ी तस्वीर देखने में असमर्थ हैं। तर्क इन बाधाओं को दूर करना आपकी आत्मा का यह सीख है। खराब विकसित कारण अक्सर अपर्याप्त दृष्टि का परिणाम होता है। अगर हम विकसित नहीं है तो हमारा अपर्याप्त दृष्टि का कारण ही है। ना केवल दृष्टि बल्कि अंतर्दृष्टि और अवलोकन का भी। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से पत्री सर ने हमें बताया कि हमें अपने तर्क को सुधार करें, इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, आत्मा पाठ और आत्मा उपदेश पुस्तक से कुछ अंश लेकर पत्री सर ने इस अध्याय के माध्यम से हमें अपने तर्क शक्ति को सुधारने के बारे में बताया। तो ये चीजें तभी संभव है जब नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संयम संगति करेंगे, तभी इसके माध्यम से अपनी इस चीज को सुधार कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।